हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। विद्यार्थीगण, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें दो पार्ट हम कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे और आपको कराने हैं, तो इस पार्ट में मैं उनको खत्म करूंगा और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसमें हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका ओवर हो जाएगा, जो आपके 10th एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी स्टार्ट कर देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपको आपके एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी के साथ मिल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गिव मी अ सेक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों? द लाइन सेगमेंट joining the point A 2,1 and B 5,-8 is trisected at the point P and Q such that P is nearer to A. P also lies on the line given by 2x minus y plus k is equals to 0. Find the value of k. तो क्या अप्रोच आपको इसको सॉल्व करने का होना चाहिए? देखिए, यहाँ एक लाइन सेगमेंट है ए बी। लाइन सेगमेंट मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज दिस इज ए बी। पॉइंट ए इज गिवन एज 2,1 एंड पॉइंट बी इज गिवन एज 5,-8। मीन्स x coordinate means abscissa is 5 and y coordinate means ordinate is -8 of point B. ठीक है। इस ट्राइसेक्टेड इट मीन्स ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है एट द पॉइंट P and Q such that P is nearer to A. तो P is nearer to A, it means Q is nearer to B. Obviously, P and Q. It is divided in trisected. It means AP raised to PQ is to QB is 1:1:1. Okay, AP is equal to PQ equals to QB means ratio between these three distances is 1:1:1. Okay, I think this is clear. P also lies on the line given by 2x minus y plus k. It means one line is passes through P, only P, not Q, not A, not B. This is passes through P. It is given as, है ना? P also lies on the line given by, this is 2x minus y plus k. This is also given information. तो ये हम गिवन इंफॉर्मेशन में यहाँ लिख देते हैं, है ना? गिवन इंफॉर्मेशन में फर्स्ट गिवन है आपको AP is to PQ is to QB is equals to 1:1:1 and P lies on the line that is given as 2x minus y plus k. Yes, it's okay. So find the value of k. ठीक। So first of all, we know that section formula of coordinate geometry. What is this? This says, suppose x comma y is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2। ये तो हम पहले लास्ट क्लासेस में कर ही चुके हैं, सबको पता होगा, ठीक है, लेकिन मैं कंप्लीट लिख देता हूं आप लोगों के लिए। n/1 अपॉन m प्लस n। ठीक है। अब अगर आप देखना चाहते हैं, आपके पास a और b है, यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो अभी आप AP और PB का रेशियो अगर करेंगे
है ना। पीबी क्या आएगा, पी क्यू प्लस क्यूबी, इट मीन्स रेशियो बिटवीन एपी एंड पीबी इज 1:2। ये आप ऐड कर देंगे 1:2, ठीक है। तो coordinates of P, that is Px, y, you can say are mx2, तो m is represented by 1 और n 2 is represented by n, ठीक है। तो सपोज आपने ये इट मीन्स 1 and 2, ठीक है। तो 1 इंटू इसके अदर साइड वाला x का वैल्यू mx2, तो 1 × 5 प्लस 2 × 2, यस समझ पा रहे हैं ना आप, 2 × 2, 2 × 2 अपॉन 1 + 2, सेम एज my2, तो 1 × y2 दिस 8, 1 × 8 प्लस ny1 2 × 1 and divided by again 1 + 2. Now it is given as 5 plus 4 9 by 3, it means 3, 8 plus 2, 8 बन जाए 8 plus 2 बन जाए 2, 10 divided by 3, ठीक है। 5 plus 4 9 divided by 3, that will give you 3, 8 plus 2 10 divided by 3. So coordinates of P are 3, 10 by 3. Yes or no? If P lies on the given line, it means coordinate of P satisfies the given line, ठीक है। तो according to x is equal to 3 and y is equal to 10/3, so you can say because P lies on 2x minus y plus k, therefore points of P satisfied the equation. Okay. नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं आपके लिए, satisfied the equation. You may say sorry, the equation is given as 2x minus y plus k. It means आपको ये सब वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, इज इक्वल टू 0 ऑल्सो, इक्वेशन है ये, 0 कंप्लीट कीजिए। इक्वेशन इज गिवन एज 2x minus y plus k, 2x minus y plus k is equal to 0, एंड जो पॉइंट्स हैं पी के वो भी लिख देते 3, 10/3. So because it is satisfied, so put the value of x and y in the given equation. So 2 into 3 minus 10/3 plus k is equal to 0. So 3 to just 6 minus 10/3 plus k is equal to 0. अभी you 3 6 मतलब LCM of these two values is 3, 3 6 18 minus 3 divided by 3, that will give you 1, 1 into 10 is 10, and plus k is equal to 0.
18 minus 10, that is 8 upon 3. 8 upon 3 plus k is equal to 0. It means k is equal to minus 8 upon 3. The value of k is minus 8 upon 3. I hope this is clear. ठीक है. Next question is, find the ratio in which the line x minus 3y is equal to 0 divides the line segment joining the points minus 2, minus 5 and 6, 3. Find the coordinate of the points of intersection. So line is x minus 3y divides the line segment joining the point this and this. So find the coordinate of the point of intersection. This is also a very important question and very good question. So suppose this is the line segment A and B. This is given. Points of A minus 2, 5 and points of B 6, 3. तो आपको दो पॉइंट्स गिवन है, उसको आपने एज्यूम कर लिया. सपोज दिस इज ए माइनस 2, 5 एंड बी माइनस 6, 3. ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं. ठीक है. देयर इज अ लाइन सेगमेंट विच इज पासेस थ्रू दिस लाइन सेगमेंट एंड दिस इज गिवन x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब P इज अ कॉमन पॉइंट. कोऑर्डिनेट ऑफ P सपोज x, y. ठीक है. So find the ratio in which the line segment x minus 3y is equal to 0 divides the line segment joining the point minus 2, minus 5 and 6, 3. Find the coordinates of the points of intersection. तो यहां आपसे दो बातें पूछी गई. एक तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है और साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये रेशियो कितना आ रहा है. ओके. तो इट मीन्स m इज टू n की वैल्यू भी आपको यहां निकालनी है और ये इस लाइन पर है, ये आपको दिया गया. ठीक है. तो ये आई थिंक आपके सिलेबस के मुझे बाहर लग रहा है क्योंकि सिलेबस आपका कुछ कट हुआ है ना. ये लाइन का इक्वेशन हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा. ठीक है. कि दो पॉइंट से अगर लाइन पास होती है तो उसका क्या इक्वेशन आता है. आई थिंक अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा. ये आउट ऑफ सिलेबस है तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ज्यादा करेंगे नहीं. देखिए लाइन का इक्वेशन आपका होता है जब दो पॉइंट से लाइन पास हो रही होती है, y माइनस बाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1. ये पहले सिलेबस में था आपके, अभी नहीं है. 11th में ही आपको मिलेगा. ठीक है. अब यहां पर आपके पास ये लाइन आ जाएगी. फिर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी हम निकाल देते हैं, है ना. एक लाइन का इक्वेशन निकाल देते हैं. यहां पर आपके पास पॉइंट है x1 बाई वन और दूसरा पॉइंट है x2 बाई टू सपोज ये. तो यहां से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा. क्या इक्वेशन आएगा देखो बच्चों, बाई माइनस बाई वन की जगह आप माइनस 5 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये इज इक्वल टू बाई टू इज 3 माइनस बाई वन अगेन माइनस 5 यानी कि प्लस 5 अपॉन x2 दिस इज 6 और प्लस 2. मैं इसलिए ये आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आपने क्लास में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आपके आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन है अभी. और x माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये. चलिए तो अभी y प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8 अपॉन 8 दैट विल गिव यू 1 और ये x प्लस 2. तो y अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ट्रांसफर करोगे x दूसरी साइड तो x माइनस वाई हो जाएगा. x माइनस वाई
और इज इक्वल्स टू ये 2 5 में से माइनस आकर होगा तो 3 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपके पास ये होगी, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, और एक गिवन इक्वेशन है लाइन का, है ना, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकंड। सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, तो अभी आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि आपके इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा आपको, आई होप, है ना। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो आप उन दो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो वहां से जो x और y के वैल्यू आते हैं वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। तो टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग दीज टू लाइन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। सपोज यहाँ आप इस सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, we get, so this is minus, this is plus, again this is minus, x is cancelled, plus 3y minus y, that will give you 2y is equals to 3. So y is equals to 3y2, and putting the value of y in equation first, so that will give you x minus 3y2 is equals to 3, then x is equals to 3 plus 3/2, तो 2 3 जा, चलिए ये लिख देते हैं एक बार, 3/2, तो 2 3 जा 6 plus 3 9/2, that will give you 9/2। तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। क्या आ गया बच्चों? ये अगर मैं यहां लिखूंगा, दैट इज ना, x का वैल्यू 9/2 आया है आपका, और y का वैल्यू 3/2 आया है। अब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जब आपके पास पॉइंट P आ गया है जो ए बी को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली सेक्शन फॉर्मूला लगाकर आप रेशियो भी फाइंड आउट कर लोगे। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो एटलीस्ट 5 मार्क्स में ये मिलेगा, 5 या 4 मार्क्स में, जो भी आपका बड़ा क्वेश्चन होगा। चलिए इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं आपके लिए, लेकिन इसका आना थोड़ा सा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये 2022 में आया था आपके यहाँ, तो 2022 का सिलेबस आई थिंक अभी आपका रिमूव हुआ है। हाँ, तो सेक्शन फॉर्मूला पता है आप लोगों को, पढ़ चुके हो आप लोग। क्या होता है? सपोज एक्स वाई इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1। कई बार हमारी बात हो गई इस फॉर्मूले पर, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने। तो m प्लस एन, और आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं तो पता ही होगा आपको, my2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस एन। इट मीन्स अभी आपको कोई एक वैल्यू डालकर आप निकाल सकते हैं, या तो x का वैल्यू पुट कर दो या y का वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये रेशियो निकालना है। दोनों वैल्यू डालने की जरूरत आपको यहां नहीं है। तो आपका y का x का वैल्यू 9/2 आया है और y का वैल्यू 3/2 आया है, तो जिससे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए मैं x के वैल्यू के साथ सॉल्व कर रहा हूं, आप y के वैल्यू से सॉल्व करके जरूर देखना, फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि हाँ आपका सेम आंसर आया है। मैं x से सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ आपके पास x का वैल्यू 9/2 आ रहा है, और m, अब ये पॉइंट्स आपको लेने होंगे, क्योंकि आप इधर ले रहे थे, इससे दूसरी तरफ पर आप लेंगे, यानी कि 6, है ना, 6 इंटू m इंटू 6 प्लस nx1। तो x का वैल्यू यहां पर कितना आ रहा है? x1 -2 इंटू -2 अपॉन m प्लस एन। बस इतना काफी, इसी को सॉल्व करना है आपको। या तो आप x के साथ सॉल्व कीजिए, y के साथ, सेम आपका आंसर आएगा, ये मैंने आपको भी बताया। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई में 9 से m का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9m प्लस 9n इज इक्वल्स टू 6 2 12m and minus 4n. So that is 12 minus 9, 3m is equals to 9 plus 4, 13n. तो m
divided by n, that will give you 13 upon 3. So m is to n is 13 is to 3. That is your final answer. I hope this is clear. अभी आप लोग को ये आ गया है तो आप इसको 22 से सॉल्व करके जरूर देखना एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x plus 3y minus 14 is equal to 0 divides the line segment joining a minus 2, 4 and b 1, 7. So this is also a same question, same type question अभी किया हमने, है ना, लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए एक बार इसको मैं फिर करा देता हूं आपके पास। फाइंड द रेशियो इन विच, अभी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, इट मींस पॉइंट तो निकालना पड़ेगा ऑलरेडी। लास्ट क्वेश्चन में तो आपसे पॉइंट भी उसने पूछ लिया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। बट जब तक आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक आप m रेस टू n भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो कंप्लीट वही करना है इसमें सारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो लाइन सेगमेंट ऑफ a minus 2, 4 and b 1, 7। लाइन सेगमेंट के लिए फॉर्मूला आपको बताया, अगर 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, दिस इज y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 and in bracket x minus x1. So suppose this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. Okay, y minus y1, it means y minus 4 is equals to y2 is given as 7 and minus 4. 7 minus 4 upon x2 is 1 and minus 2 and minus plus 2 हो जाएगा ये, और x minus अगेन प्लस 2 यहां हो जाएगा, ठीक है। 7 plus 4 that is 11 upon 3. So y minus 4 is equals to 11 upon 3 and x plus 2. अभी मल्टीप्लाई में ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3y minus 12 is equals to 11x plus 22। ठीक है, तो अभी आएगा आपका 11x minus 3y is equals to 22 plus 12, that will give you 4 and 3, 34. 11x minus 3y is equals to 34। अभी आपके पास दो इक्वेशंस हो गए, तो दो इक्वेशंस को आपको यहाँ सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 3y माइनस या इक्वल टू 14 कर दो, तो ट्रांसफर कर दो, दिस इज द इक्वेशन 1। एंड सेकंड इक्वेशन 11x minus 3y इज इक्वल टू 34। अभी तो आपके पास प्लस 3y और माइनस 3y है, तो आसान हो गया इसको, है ना। एडिंग बोथ द इक्वेशन, 3y कैंसिल, 11x plus x that will give you 12x is equals to 34 plus 14 that will give you 48. So x is equals to 4. Putting the value of x in equation first, then 3y is equals to 14 minus 4 that will give you 10. Then y is equals to 10 upon 3. तो अभी आपके पास ये दो पॉइंट्स आ गए हैं। बस अभी आपको सेक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट लगाना है रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। एक एक्स्ट्रा हमें चाहिए, क्वेश्चन हटा देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आप लोग जानते हो, तो x इज इक्वल टू, केवल x के लिए ले लो या y के लिए ले लो, आप मैं x के लिए कर रहा हूं, आप y के लिए सॉल्व करके देख सकते हो। m x2 प्लस n x1 अपॉन, ये n है, इसको आप लोग x में समझ लेना,
लिखने में, चलिए मैं तो लिख देता हूँ, अपॉन m प्लस n। x का वैल्यू अभी कितना है, अभी किया आपने, दैट इज 4। तो 4 इज इक्वल्स टू m, x2 चाहिए, तो इसमें x2 कितना है यहाँ पर 1, x2 कितना है 1, तो m इंटू 1 और प्लस n x1। तो x1 यहाँ कितना आ रहा है -2 इंटू -2 और अपॉन m प्लस n। तो अभी तो आप समझ रहे हैं ना, ये जो लाइन सेगमेंट बना है ए और बी को लेकर, तो उस पर ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ था वो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, सपोज दैट इज पी, तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाले थे 4, 10/3। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए ना। तो अभी उससे हम इनका रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो यहाँ हम कर रहे हैं। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू m माइनस 2n। तो अभी m माइनस हो जाएगा इधर जाकर, तो 3m इज इक्वल्स टू ये 4n उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा -6n। अभी देखिए, माइनस की वजह से प्रॉब्लम में आने की बात नहीं है, इसमें दो तरह के लाइन सेगमेंट होते हैं क्या, एक एक्सटर्नली डिवाइड करता है और एक इंटरनली डिवाइड करता है। तो ये पॉइंट जो है आपका, ये क्या हो सकता है, मैं आपको यहाँ फिगर बना के बताता हूँ। सपोज ये ए और बी है, तो यहाँ पर ये लाइन आपका बाहर हो सकता है, ठीक है। तो वो बाहर होता है तो वो नेगेटिव आपका रेशियो आएगा, ठीक है। इट मीन्स ये 3 आएगा और ये टोटल 6 आएगा, तभी तो 3:6 में आएगा ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट बाहर है, मतलब ये आपको, ये 3 नहीं, ये 3, ठीक है, ऐसे कुछ। तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है, तो उससे परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6/2, यानी कि m अपॉन n इज इक्वल टू -3/1, 3:1। तो अभी जो m इज टू n रेशियो आ गया, वो आपका 3:1 एक्सटर्नली आप लिख देंगे, एक्सटर्नली ये आप लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नेगेटिव साइन के साथ आया, तो नेगेटिव साइन हटाएंगे तो इट मीन्स दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सटर्नली, यानी कि बाहर की तरफ है ए और बी, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 5, -8, 2, -9 एंड 2, 1। तो यहाँ पर आपको एक सर्किल दिया हुआ है, तो सर्किल एक बना लेते हैं पहले। चलिए, ये आपका सपोज एक सर्किल है, ठीक है। लीजिए, सर्किल में मैं आपकी बाउंड्री डिफाइन करना चाहूंगे और इसको क्या होगा, चलिए फिलहाल ये सर्किल है, ठीक है। अब इस सर्किल में आपको इसके पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट दिए मैंने, एक पॉइंट है 5, -8, सपोज ये 5, -8 है, कुछ भी नाम दे दो इसको, ए, दिस इज द पॉइंट ए। एक पॉइंट भी आपको गिवन है यहाँ पर 2, -9, ये आपको सपोज करने हैं, सपोज दिस इज द पॉइंट बी एंड सपोज दिस इज द पॉइंट सी 2, 1। ये आपने सर्किल पर ले ली, कोऑर्डिनेट में बनाओगे अलग तरह से बनेगा, इसको आप मान लो ये दिस इज द पॉइंट सी। अभी क्या कंडीशन है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सेंटर के पॉइंट आपको निकालने ही है, सपोज ये x, y है। तो हमें सर्कल का कंडीशन पता है ना बच्चों, क्या, कि जो उनके रेडियस होते हैं वो
क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, ओ सी, ओ बी और ओ ए, एक मिनट इनको इसका पता खींचने में, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स अगर आपके पास सर्कल पर हैं, तो ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, मतलब इनके रेडियस क्या होंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू डी स्क्वायर ले लो, बल्कि x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, मैं राइट। यहाँ लिखा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लस नहीं है माइनस, ठीक है। तो ये याद रहने चाहिए बच्चों, x माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू डाल दो। अब आप सपोज यहाँ पर ओ बी स्क्वायर निकाल, ओ ए स्क्वायर पहले निकाल दो, ओ ए स्क्वायर। अभी देखो अगर ये आपस में ऐसे बराबर है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इट मीन स्क्वायरिंग करोगे आप कंप्लीट इक्वेशन का, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर भी आएगा। तो इसलिए ओ ए स्क्वायर हम सीधे निकाल देंगे। तो यहाँ पर किसी को भी x1 किसी को भी x2 मान लो, तो यहाँ आपके पास ओ ए अगर आप निकाल लें तो x तो आपके पास ऑलरेडी है, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से ओ बी स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो ओ बी स्क्वायर आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 नहीं, x माइनस 2 y माइनस 1। और ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमने ऊपर ओ सी निकाल दिया है क्या, ओ, तो इसको ओ सी लिख दो, ओ सी हमने पहले निकाल दिया है, दिस इज द ओ सी स्क्वायर। अभी आपको ओ बी निकालना है, तो ओ बी स्क्वायर आपका कितना आएगा बच्चों, ओ बी स्क्वायर आएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y, और माइनस 9 है और माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी है, तो इसलिए y प्लस 9 होल स्क्वायर। तो अभी हमने ऊपर बताया आपको ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, तो इट मीन्स यू कैन राइट इट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब हमने पहले क्या कर लिया है, ओ ए और ओ सी को ले लिया है, ठीक है। तो अभी आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ एक इक्वेशन बनेगी, वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप, आई होप आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो यहाँ भी ये आ जाएगा, ये मैं पूरा डिटेल में आपको ऐसे इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कैसे आपको लिखना है, तो वो मैं यहाँ क्लियर पिक्चर दे रहा हूँ, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 8 टू जा 16y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू जा 4y, दैट इज 4x नॉट 4y, 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस 2 बन जा 2y। तो देखो अभी एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू साइन के साथ है,
मतलब इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास किसी एक साइड आप एक्स के वैल्यूज ले जाओ, वाई के पास वैल्यूज ले जाओ, तो मैं इस साइड ले जाता हूँ। तो यहाँ -4x है और 10x उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 4x माइनस प्लस 10x आपको मिल जाएगा 6x। 6x लिख दो पहले। इस तरह से -16y आप उधर लेकर जाओगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और -2y है। तो 16y प्लस 16y -2y, दैट विल गिव यू 14y। ये लेंदी क्वेश्चन है, मतलब 5 मार्क्स में आपको ये मिलने वाला है। और फिर यहाँ पर कैलकुलेशन इसको भी कर लो कंप्लीट। अभी देखो, ये आपको इस तरफ लाना है 4, तो ये 4 प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा 64 में से, तो 60 बच जाएगा, है ना। कैलकुलेशन को इजी बनाना है, 60 तो ये आ जाएगा, और ये 125 में से माइनस हो जाएगा तो 24, तो 60 प्लस 24 दैट इज 84 इज इक्वल टू 84। आई होप ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। एक बार चलिए रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, -10x उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10x माइनस 4x 6x आ जाएगा। इसी तरह से -16y उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 16y -2y 14y हो जाएगा। फिर मैंने इसको कैसे किया, ये 4 अगर इधर 64 में से आकर माइनस हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, और ये 1 इस 25 में से माइनस हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। तभी आपके पास 60 प्लस 24 84 आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन 1। इसी तरह से आपको सेकंड इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले हमने ओ ए ओ सी लिया है, अभी आप ओ सी और ओ बी ले सकते हैं। ओ सी एंड ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर ले लो। तो चलिए, स्लाइड तो हमें चाहिए ऑब्वियसली, तो स्लाइड का काम ऐसे ही होगा। क्वेश्चन हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। चलिए, तो अभी आपके पास ओ सी है x माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब हम अब क्या ले रहे हैं, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ सी में x माइनस 2 का स्क्वायर था आपके पास, और क्या है, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी की कंडीशन क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर। अभी देखिए, ये आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर से आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल कर दो, पूरा ओपन करने की जरूरत ही नहीं, सेम है दोनों वैल्यू। तो यहाँ से y का वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तभी ये हो जाएगा, ओपन करोगे होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 81 माइनस 9 टू जा 18y। अभी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 18y इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 16y आई थिंक। ठीक है, तो 16y इज इक्वल टू ये 1 81 में से माइनस होगा तो 80 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 80 अपॉन 16, दैट विल गिव यू 5। तो y का वैल्यू 5 आ गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आई थिंक ये आप लिख लोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इज व्हाट, दैट इज 6x प्लस 14y इज इक्वल टू 84। तो 6x प्लस 14 बाय 14 इंटू 5 इज इक्वल टू 84, राइट। ठीक है, अभी आपको तो सॉल्व करना है। तो 14 5 जा 70, 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 84 माइनस 70। ठीक है, 6x इज इक्वल टू 14। अगर सारा कैलकुलेशन ठीक है तो ये सही आ रहा है। ठीक है, तो अभी x क्या आ जाएगा, 14 अपॉन 6 मीन्स 7 अपॉन 3। x का वैल्यू 7 अपॉन 3 आ गया। तो सेंटर ऑफ द सर्किल इज
7y3, 5. I hope this is clear. ठीक है, this is also a good question for your exam. Next question. If the distance of px, y from a 5, 1 and b minus 1, 5 are equal, then prove that 3x is equal to 2y. तो ये लाइन का इक्वेशन आपको यहाँ प्रूव करना है. तो गिवन है आपको, गिवन इज व्हाट, the distance between from A and B are equal. Point P. It means AP is equals to PP. Okay? If the distance of P from A and B are equal, it means suppose this is the point P, x, y. ऐसा फिगर में आपको बना देता हूं. There is a point A, 5, 1 and there is a point B minus 1, 5. ऐसे ही बना रहे. किसी कोऑर्डिनेट में अगर बनाएंगे तो ये पॉइंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, तो इसको ऐसा मत लेना है ना. ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, तो ये बदल जाएगा. लेकिन मैंने आपको रफली ये बनाकर बताया है ना कि ये डिस्टेंस ऐसे कुछ दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू पी. तो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. अभी अगर AP इज इक्वल टू PB है, इट मीन्स AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 और x1 माइनस x2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. हमने लास्ट में लिखा था x माइनस x2 का होल स्क्वायर. तो देखो होल स्क्वायर है तो फर्क पड़ेगा नहीं इस बार, है ना. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ही आएगा. ठीक है, तो यहां पर आपको AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर है. तो AP के लिए अगर आप जाएंगे तो ये दो पॉइंट चाहिए, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB के लिए x माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर. अभी होल स्क्वायर को ओपन कर दो. होल स्क्वायर अभी आपको पता ही है क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर. जानते हो ना सब, बिल्कुल जानते होगे बच्चों. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 टू जा 10y. अभी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल. ठीक है, यहाँ ओ एक मिनट, ये हमारा y को लिख दिया हमने, x माइनस 5 है. ठीक है, x माइनस 5 था तो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ आएगा. और तो यहाँ भी बात बदल जाएगी. ये क्या हो जाएगा, 5 टू जा 10x. बाकी आई थिंक ठीक. हाँ, बाई स्क्वायर से ये बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अभी आपके पास x का वैल्यू और देखो 25 से 25 भी कैंसिल हो रहा है. ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है. यस, 1 से ये 1 भी कैंसिल हो रहा है. तो माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 10y. तो माइनस माइनस ऑल्सो कैंसिल. तो अभी 2 से कुछ और भी बच रही है वैल्यू राइट साइड और लेफ्ट साइड में. यहाँ 2x आ रहा है और यहाँ 2y भी आ रहा है. तो एक मिनट को वापस लिखता हूँ, ट्रांसफर कर लेते हैं पहले. माइनस 10x और माइनस 2x हो जाएगा. जरा करिए, उधर माइनस 10y और वो प्लस 2y हो जाएगा. ठीक है, उधर ट्रांसफर होगा. तो अभी माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 8y. अभी माइनस माइनस का कैंसिल. अभी बोथ साइड डिवाइडिंग बाय,
ये ब्रैकेट में मैं डालता हूँ, डिवाइडेड बाय कॉमन नंबर इज 4। ठीक है, तो 4 से 12 डिवाइड हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स 2y। तो अभी यही आपको प्रूव करना था, 3x इज इक्वल टू 2y। दिस इज प्रूव। ओके, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन अगर आप लोग टर्मिनोलॉजी और फॉर्मूलाज को जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a 3, b 0, and c 3, k are the vertices of an equilateral triangle ABC, then find the value of k। तो all know condition of equilateral triangle है ना, sides of equilateral triangles are equal। तो vertices are given is like, suppose this is the triangle ABC। ठीक है, तो A is given as 3, and B is given as 0, origin point हो जाएगा obviously, and C is 3, K। तो अभी आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों, K का वैल्यू फाइंड करना है ना। वर्टिसेस आपको गिवन है, तो वर्टिसेस आपको गिवन है, तो ये आप अच्छे से जानते हो कि ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है। इट मींस यू कैन से AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। क्यों? बिकॉज दीज आर द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, बिकॉज गिवन these are the three sides of equilateral triangle, the sides of an equilateral triangle, okay, that's why these sides are equal। so now you can say AB square is equals to AC square is equals to BC square also। ठीक है, now AB square is equals to what? AB square is equals to 2 points included A and B, so 3 minus 0 whole square plus √3 minus 0 whole square। तो अभी AB स्क्वायर आपको आ जाएगा 3 स्क्वायर इज 9 एंड √3 स्क्वायर इज 3, तो 9 plus 3 12। देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, जगह कम पड़ती है स्लाइड्स में, तो मैं इसको सीधे भी कर देता हूँ। इसी तरह से BC स्क्वायर अगर आप चाहते हैं तो BC स्क्वायर में क्या होगा, 3 minus 0 होल स्क्वायर है ना, BC, तो C का पॉइंट 3 और 0 प्लस K minus 0 होल स्क्वायर, K और 0। तो अभी ये आपको 3 स्क्वायर 9 एंड प्लस K स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस K स्क्वायर। ठीक है, अभी इन दोनों को लेकर सॉल्व कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें K का वैल्यू चाहिए। लेकिन चलिए अभी तीसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनने का है इसमें, तो बच जाएंगे उससे आप। BC स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो AC के केस में ये दोनों पॉइंट्स आने वाले हैं, तो यहाँ पर 3 minus 3 स्क्वायर प्लस K माइनस √3 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3 minus 3 0 आने वाला है, और ये क्या आ जाएगा, K माइनस √3 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको आपको सॉल्व करना है कि क्या कर सकते हैं। तो आप AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट केस में आप ले लेते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर आपके पास 12 आया है, तो 12 इज इक्वल टू BC स्क्वायर आया है 9 प्लस K स्क्वायर, तो K स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 9 दैट इज 3, तो K इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √3, है ना। दो वैल्यूज यहाँ पर आपकी K की आ रही है, क्योंकि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस √3 एंड माइनस √3। तो सेकंड केस में भी जाएंगे जिससे हमें कॉमन वैल्यू मिल जाए। सेकंड केस में भी आप ले सकते हो, इसको ले लो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो BC आप AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर भी ले सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कहां से हमारे लिए इजी रहेगा। तो हमारे लिए इजी क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ K स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी जब ब्रैकेट ओपन करोगे K स्क्वायर आएगा, तो K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके लिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा थोड़ा।
है ना, नहीं तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी अगर आप इक्वल टू 12 लेते हो। तो आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 9 बीसी है, 9 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एसी में जब आप होल स्क्वायर करोगे के माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो के स्क्वायर आएगा, प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर 3 आएगा, माइनस 2 के रूट 3 आएगा, है ना, के रूट थ्री आएगा, 2 के रूट 3 आएगा। अभी के स्क्वायर गेट कैंसिल, अभी इस 3 को इधर ले आओगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो माइनस 2 के इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, है ना, 9 - 6। तो 2 के रूट 3 ऑल्सो, इसमें दीजिए, माइनस 2 के इंटू रूट 3 है यहाँ पर, और इज इक्वल टू 6 आ गया है। तो इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू आपको मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय -2 रूट 3। 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, और 3 रूट 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा रूट 3 टाइम्स, यानी कि के इज इक्वल टू -√3। तो अभी आपको कॉमन वैल्यू मिल गई है के की, यहां से -√3 आ रही थी, और फर्स्ट वाले केस से प्लस -√3 आ रही थी। इट मीन कॉमन वैल्यू इज -√3। तो वैल्यू ऑफ के इज -√3। यस, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर, दैट इज के इज इक्वल टू -√3। ठीक है, इसलिए यहां पर आपको दोनों केस सॉल्व करने पड़ेंगे जिससे आपको एक कॉमन वैल्यू मिल जाए। अगर कॉमन वैल्यू नहीं मिलती तो हमें ये दोनों पॉइंट यहाँ रखने पड़ते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। इफ वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 1,4 -2,3 एंड सी 5,8, द ऑर्डिनेट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, द ऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स सी। तो दिस इज गिवन अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं रफली। So this is a पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में आपको लेने चाहिए पॉइंट, डी, ये ध्यान रखिए। तो ए इज गिवन एज 1,4, बी इज माइनस, मेरी बात समझ गए ना आप, साइकिल ऑर्डर में ही आपको पॉइंट्स लेने, -2,3, एंड सी इज 5,8, एंड ऑर्डिनेट ऑफ डी आपको निकालना है, लेकिन पॉइंट तो उसके दो ही होंगे, x, y। आपने डी के पॉइंट सपोज कर लिए हैं। सपोज पॉइंट ऑफ डी आर x, y। अभी आपके पास एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब दोनों एक दूसरे को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो डी बी एक डायगोनल होगा, और ए सी एक डायगोनल होगा। सपोज ये किसी पॉइंट पी पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, आई होप सब लोग ये थ्योरम जानते हो, आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, इट मीन्स एपी इज टू पीसी is 1:1, and DP is to PB is 1:1। अब देखो यहां से एक आइडिया और निकलता है,
इट मीन्स P इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल, है ना। इट मीन्स P is the midpoint of both diagonals. अब आप इसको डायरेक्ट भी ये लाइन लिख दो जो मैंने यहाँ पर ये आपको लिखा है कि AP is to P is to PC is 1:1 and DP is to PB is 1:1। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीधे ये लिखो, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, इट मीन्स P is the midpoint of both diagonals। तो ये लाइन आप सीधे लिखिए, ये मत लिखिए कि AP is to PC is 1:1 and DP is to PB is 1:1। नो नीड, ठीक है। डायगोनल, ये डायगोनल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। अब मिड पॉइंट अगर आपके पास ये है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका आता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये सेक्शन फॉर्मूला से ही आता है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट आपका यानी कि पी के पॉइंट क्या आ जाएंगे, पी के पॉइंट आपके आ जाएंगे, अगर आप पहले ए सी के 2 पॉइंट्स लेकर इस पॉइंट को निकाल दो तो यहाँ पर 1 प्लस 5 अपॉन 2, है ना। ए का x और सी का x कितना है, 5 है। तो 1 प्लस 5 अपॉन 2 कॉमा इस तरह से ए का बाई ऑर्डिनेट बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 एंड प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो पी सॉरी 6 अपॉन 2 3 कॉमा 4 प्लस 8 12 अपॉन 2 यानी कि 6। तो 3 6 आपका मिड पॉइंट आ गया है, यानी कि डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड DB। तो अगर आपके पास मिड पॉइंट आ गया है तो अभी कंपेयर करा लो, ठीक है। कंपेयर अगर आप कराओगे तो P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ DB, दैट इज बाय, अभी ये 3 6 आपने लिख दिया है, अभी कंपेयरिंग करके लिख दो सीधे। मैं देखो लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग लिख लोगे मैं जानता हूँ, है ना। कंपेयरिंग बोथ साइड करके कर लेना। तो 3 इज इक्वल टू x माइनस, क्योंकि प्लस 2 है और वहां -2 है इसलिए x -2 आ जाएगा, x -2 अपॉन 2। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6 और ये 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 आपको मिल जाएगा, पॉइंट नंबर 1। सेम y का वैल्यू कंपेयर कर लो, तो 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो यानी कि y प्लस 3 अपॉन 2। तो अब इसको सॉल्व करोगे आप, 2 6 जा 12 और ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 9। तो अभी आपके पास x और y की वैल्यू यहाँ आ गई है, ठीक है। क्या आ गई है बच्चों, 8 एंड 9। तो वैल्यू ऑफ x बाई यहाँ लिख देते हैं आंसर में, x कॉमा y इज 8 कॉमा 9। ओके, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 पॉइंट a -1 comma y and b 5 comma 7 lie on a circle with center o 2 और माइनस कॉमा -3 comma y। आई थिंक 2 comma 3 नॉट बाय, इसको हटा देते हैं, ये बाई मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है। दिस इज ओनली 2 comma माइनस द वैल्यू ऑफ y इज वॉट। तो चलिए सर्कल ड्रॉ कर देता हूं मैं, वैसे तो पता ही है आपको, ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज यहाँ इसका कोई सेंटर आ रहा है, दूसरा सेंटर ओ, और ओके पॉइंट आपको गिवन है 2 कॉमा -3, ठीक है। ए और बी 2 पॉइंट्स है, लाई ऑन द सेंटर द वैल्यू ऑफ y। तो आई होप ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके तो समझ आ गया होगा आपको क्या करना है। ये ए के पॉइंट्स आपको दिए हुए -1 कॉमा y और बी के पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 5 कॉमा 7।
अब ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को कर लेना चाहिए, मैं नहीं करा रहा हूं। इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना। तो गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। इसको आपको सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं अभी इसी इसी वीडियो में। तो ये आपको सॉल्व करना है। यहां मैं लिख देता हूं, गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये मैंने बड़ा बड़ा यहाँ लिख दिया है। तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और जितना जल्दी आप देंगे मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये सब कुछ देख रहे हैं ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से यहाँ कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले क्लास में बहुत जल्द।